welcome all. So, today in conversation with me, I have an amazing author. His name is Manu Siddharth, and he has written an amazing book, Shiv Puran Unlocked. And it's such an honor to have the author directly here with me today, sitting across me, so that we can discuss a lot about his book. So let's get to the author and know from him directly about the book. So first of all, thank you so much for joining us today, Manuji. And it's such an honor to have you here at this conversation. Thank you, ma'am, for giving me this opportunity as well. So talking about the book, Yes. what this book is all about. So this book is mainly the simplification of our ancient Shiv Puran, right? So as we know, Shiv Puran is very lengthy and very difficult to understand because it has very complex terms, right? Which usually people don't understand. And to understand any scripture, we should have the guidance of our guru or a very experienced person who will be having spiritual experiences, right? So a lot of things, it's not an easy thing. You just have it as a normal book and read it. So I've tried to make it more simple, easy to grab, right? Easy to understand, so that you will understand the what is the actual gist of Shiv Puran. And by reading it, you will be getting more attracted to read the actual Shiv Puran. That's my objective. ओके सो आपने शिव पुराण को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में प्रेजेंट करने की कोशिश की है. Yes. तो ये इंस्पिरेशन आया कहाँ से आपको? सो ये मैम मेरा थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि something odd was happening in my life after my marriage and all. So I was very much inclined towards Shiv Bhagwan. So शिव जी का मेन जो आप सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप you don't know like how to actually in which way we should worship Shiv ji, right? So a lot of myths are there, right? So आप ये ना करो वो ना करो. So there is no proper way to understand what are the small things we should follow. So the one and only one thing is the Shiv Puran. If you read Shiv Puran, all the these type of myths will be revealed. So when I first start reading Shiv Puran, a lot of issues happened in terms of understanding the things. So I reached my guru. Then I also visited different sadhu sant, Agori Baba in Varanasi to understand what's the actual context behind certain things. And then after understanding it, I have one feeling that I should also spread it to the wider audience to get the benefit out of it. Because Shiv ji ka jo grace hai and the power of Shiv ji is actually unique in among all gods, right? इसलिए उनको महादेव बोलते हैं. And आपको अपनी लाइफ में अगर मतलब you want all the challenges to be streamlined into simple life, right? So you should definitely worship Lord Shiva. So by writing this book, once you read this book, a lot of myths will be removed from your mind, right? And very small things you'll be going to understand, and a lot of interesting things which you don't know. आपको जैसा नहीं पता है कि कैसे हमको शिव भगवान पे जल चढ़ाना चाहिए, क्यों हम बेलपत्र ही चढ़ाते हैं, राइट? और यूनिवर्स का क्रिएशन कैसे हुआ, उसमें शिव जी का क्या कंट्रीब्यूशन है, राइट? तो ये बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आपको पता चलेंगी और आपकी भक्ति और डिवोशन जो है, नॉट इन टर्म्स ऑफ ओनली इन स्पिरिचुअल वे बट इन टर्म्स ऑफ नॉलेज यू विल गेट. सो कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है वो आप शेयर करना चाहेंगे? ओके. सो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमको एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि शिव लिंग जो है, शिवलिंग पे जल कैसे चढ़ाना चाहिए. तो यूजुअली आप देखते हो कि आप मंदिर में जाते हो, यूजुअली आप जल चढ़ा देते हैं, राइट? बट द एक्चुअल वे ऑफ ऑफरिंग जल इज पूरी शिवलिंग में हमारे सारे देवी देवताओं का वास माना जाता है एज पर शिव पुराण. राइट साइड में हमारे गणेश जी हैं, लेफ्ट साइड में कार्तिकेय जी हैं, मिडिल जो जलाधारी है उसमें हम त्रिपुरा देवी जो उनकी बेटी हैं, और
राउंड जो है, जो बेस है, दैट इज माँ पार्वती, एंड एक्चुअल शिवलिंग जो है दैट इज हमारे महादेव. तो देर इज अ प्रॉपर वे टू ऑफर शिवलिंग, जल टू द शिवलिंग, सो दैट यू विल गेट द एक्चुअल बेनिफिट आउट ऑफ इट, राइट. तो इसीलिए बहुत बार क्या होता है कि, और ये जो जल चढ़ाना है शिवलिंग पे, बहुत चीज़ हमको ये नहीं पता होती कि इसका महत्व क्या है हमारी लाइफ में. तो इफ़ यू नो अबाउट तंत्र एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट, तो ये भी एक तरह का तंत्र है जो हमको यूजुअली नहीं पता, राइट. तो जब आप कोई भी इच्छा करके हम जल चढ़ाते हैं और 3 बार उस जल चढ़े हुए जल को आचमन करके उसको ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तो हमारा वो चीज़ पूरा हो जाता है. तो बहुत, अब जैसे आप देखते हो बहुत नेगेटिविटी है हमारी लाइफ में, राइट, ड्यू टू एनी एक्सटर्नल फैक्टर्स और एनी अदर फैक्टर्स. तो आप भगवान शिव को नमन करके, नमः शिवाय का जाप करके अगर जल चढ़ाते हैं और 3 बार उसका आचमन करते हैं, तो मेराकुलसली आपकी वो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं. तो ये ऐसी चीज़ है, ये जब तक आप विश्वास नहीं करोगे और एक्सपीरियंस नहीं करोगे, यू विल नेवर एबल टू अंडरस्टैंड, राइट. सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स आई टोल्ड यू, लाइक दैट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन द बुक आई मेंशन्ड. सो बेसिकली यस, जैसे आपने बताया बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती. जैसे आज आज आपसे कन्वर्सेशन करके मुझे पता चला कि उसका आचमन भी ज़रूरी है करना अगर आप किसी चीज़ का निवारण चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में. हम क्या जल चढ़ा देते हैं और हम नमन करके बाहर आ जाते हैं. करेक्ट. सो प्रोसेसेस अगर राइट फॉलो करें सो उसके जो भी बेनिफिट्स हैं वो भी हमें मिलने लगते. तो दिस इज वन ऑफ द थिंग, जब आपकी कोई इच्छा आपको या कुछ निगेटिविटी है उसको आप निवारण के लिए ऐसा कर सकते हैं. दूसरा चीज़ है कि एज पर शिव पुराण ये मेंशन है कि आप अगर उस जल को रेगुलरली 3 बार आचमन करते हैं चढ़ाने के बाद, तो आपके जो पिछले जन्म के पुराने बैड कर्मास हैं वो भगवान शिव रिमूव करते जाते हैं. तो यूजुअली देखिए क्या है, हम जो इस लाइफ को जी रहे हैं, अपने पिछले बैड कर्मास को भी हमको चैलेंज के वे में हैंडल करना पड़ता है, राइट. बहुत सारे तकलीफ़ें हैं, दुख हैं, उनको झेलने पड़ते हैं. तो उससे अगर आप निवारण चाहते हैं तो आपको शिव भगवान ही बचा सकते हैं. तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग. तो धीरे धीरे जब आपके बैड कर्मास ख़त्म होने लगेंगे, एंड इफ़ यू आर डूइंग राइट थिंग्स, एथिकल थिंग्स इन योर लाइफ, देन योर लाइफ विल बिकम सिंपल एंड ईजी. राइट. सो बैड कर्मा खत्म करना और आगे कुछ बैड ना करके डिपॉजिट करो तो फिर देन प्रॉब्ली लाइफ की जो ट्रैक है, पटरी अपने आप उस पे आना शुरू हो जाएगी. वंडरफुल वंडरफुल. सो आप एज अ प्रोफेशन व्हाट डू यू डू? मैं तो एआई प्रोफेशनल हूँ, एआई डोमेन में हूँ मैं. इट्स अ वेरी यूनिक थिंग कि इफ़ यू आर प्योरली टेक्निकल नाउ, attracting towards spiritual, but that is also based on my personal experiences. Something happened in my life and which actually attracted me towards spiritualism, and then I specifically attracted towards Lord Shiva. Now I am fully satisfied in both the ways, in my technical domain as well and in the spiritual domain. So basically मैं एक बात ही बोलूँगा कि हर इंसान को शिव पुराण पढ़ने इसलिए चाहिए. आप देखोगे टोटल 18 पुराण हैं हमारे स्क्रिप्चर्स में, राइट. सो वाई आई एम सेइंग ओनली शिव पुराण. तो शिव पुराण जो है वो महापुराण कही जाती है. जिस प्रकार से भगवान शिव महादेव हैं, वैसे वो महापुराण है. रीज़न क्या है इसको पढ़ने का कि इस कलयुग में बोला जाता है एज पर आवर स्क्रिप्चर्स कि एकमात्र शिव पुराण है जो आपको आपके बैड कर्मास से, आपके पापों से जो आप कर चुके हो और जो कर रहे हो, राइट, उससे भी वो आपको रिमूवल के लिए वो आप यूज़ होता है, ठीक है. और आप अपनी लाइफ को सिंपल कर सकते हैं. बिकॉज आज आप कोई भी जॉब कर रहे हो, राइट, इफ़ यू आर लॉयर, सो अननोइंगली यू आर डूइंग wrong things and ethical things, right? So how we should purify ourselves internally, right? तो जस्ट मैं एक ये बात बोलूँगा, इफ आप मेरी शिव पुराण अनलॉक्ड पढ़ो या नॉर्मल शिव पुराण पढ़ो, मेरा कोई वैसा वो नहीं है, बट मैं एक मैसेज यही देना चाहता हूँ कि वंस यू रीड शिव पुराण, आप इंटरनली प्योरीफाई होना शुरू हो जाते हो अननोइंगली. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट. आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा यू आर रीडिंग स्टोरीज, राइट, बट वैसी सिचुएशन हमारी लाइफ में आएंगी ज़रूर, और जैसे ही आएंगी ऑटोमेटिकली यू विल थिंक अबाउट इट एंड यू विल डू राइट थिंग्स. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट. वंडरफुल वंडरफुल. सो शिव पुराण जैसे आपने बताया कि जो एक्चुअल है वो
अगर हम पहली बार कनेक्ट होना चाह रहे हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकती है। और सो सिंप्लीफाइड वे है, आपने उसको सिंप्लीफाइड वे में प्रेजेंट किया हुआ है। सो इट्स बेस्ट टू पिक दैट बुक बिग एंड हाँ एटलीस्ट स्टार्ट द जर्नी। स्टार्ट द जर्नी स्टार्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? Yes. सो अगेन इसी पे एक दूसरा क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा। सो ये बुक उठानी किसको चाहिए? हु शुड पिक दिस बुक एंड रीड इट? देखिए सबसे पहली चीज़ है कि ऐसे रीडर्स या ऐसे हमारा यूथ या कोई भी जो अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स लॉर्ड शिवा एंड डोंट नो हाउ टू प्रोसीड इन देयर जर्नी ऑफ स्पिरिचुअलिज्म और डिवोशन टुवर्ड्स लॉर्ड शिवा, राइट? सो मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई, मैं चाहता हूँ कि वो प्रॉब्लम ना हो लोगों के साथ, क्योंकि आप देखोगे आज के डेट में बहुत कंटेंट अवेलेबल है, राइट? आप यूट्यूब पे पढ़ने या वीडियोस देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको डिफरेंट लोग बता रहे हैं, राइट? आपको ये नहीं समझ में आएगा विच पाथ टू फॉलो, राइट? सो दिस इज द ऑथेंटिक पाथ टू फॉलो टुवर्ड्स डिवोशन टुवर्ड्स लॉर्ड शिवा। दैट इज़ वन ऑफ द थिंग। सेकेंड थिंग कि ऐसे लोग जो हमारे स्क्रिप्चर्स के बारे में सिंप्लीफाइड वे में जानना चाहते हैं, राइट? सो it's not only about Indian authors, it's also about outside India who wants to know about Lordship, wants to know about the scriptures, our dharma, right? So they also pick it up and try to understand how it is. Yeah. So basically understanding and journey start अगर किसी को करना है, so then Correct. this is the right book, right pick Right. for the people. Because I have also been भक्त of शिव जी from the beginning, but कभी मैंने पढ़ा नहीं या मैंने कभी ट्राई नहीं किया। शायद ऐसी बुक कोई मेरे सामने आई नहीं उस समय जो मुझे चीज़ें बहुत सिंप्लीफाइड करके बता सके। और हम क्या हैं, डिफिकल्ट चीज़ों से थोड़ा डरते हैं कि इतना थिक पुराण उठाना शायद मुझसे ना हो पाए। डरने का बात नहीं, मतलब यूजुअली आदमी के पास टाइम भी नहीं रहता है, राइट? हम अपना नॉर्मल ऑफिस डेज में वी डोंट हैव दैट मच टाइम। करेक्ट। तो आप इस बुक को मतलब एज ए जिस्ट समझ सकते हो, और इन अ सिंपल वे आई हैव ट्राई टू समराइज दोस चैप्टर्स, तो आप उसको इजीली ग्रैब कर सको और यू जस्ट कंप्लीट वन चैप्टर इन अ डे। इट्स इजी टू डू दैट। वंडरफुल। सो आपने ये जो बुक लिखी, राइट, आपने बोला कि आप खुद उस पाथ पे चले और आपने बहुत चीज़ें समझी कि कैसे शिव की भक्ति से बहुत सारी चीज़ों का निवारण हो सकता है। तो बुक लिखने का थॉट कहाँ से आया? देखिए, एक तो होता है कि आपको सोल्यूशन मिला, ठीक है चलो मैंने लगाया, लेकिन बुक लिखना मतलब दुनिया को बताना, तो वो इंस्पिरेशन कहाँ से आया? करेक्ट। तो देखिए, ऐसा मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं जब बुक पढ़ रहा था तो यूजली एज यू नो कि मैं टेक्निकल डोमेन में हूँ, तो मेरे पास भी टाइम नहीं होता था। काफ़ी बड़ा चैलेंज था विद फैमिली एंड एवरीथिंग, यू आर डेडिकेटिंग सर्टेन टाइम। तो मैं एकदम ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ता था एक्चुअल शिव पुराण जो हिंदी में है। तो आई ट्राई टू डू इट इन 1 आवर, जितना मैं मैक्स पढ़ पाऊँ, ठीक है? तो जब आप पढ़ता था मैं, तो प्रॉब्लम क्या होती थी कि चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, राइट? तो उसके लिए मुझे पूरी शिव पुराण पढ़ने में अराउंड 2.5 months लगे, बिकॉज आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड इन अ फुल वे। लाइक ऐसा ना हो कि मतलब फिर मैं एक कॉम्प्लेक्सिटी में फंस जाऊं और जो जर्नी स्टार्ट करी है वो बंद हो जाए। तो ऐसा भी बहुत बार होता है, यूजुअली आपको समझ नहीं आता, यू आर जस्ट रीडिंग इट, राइट? तो वो चीज़ ना हो। तो मैंने कोशिश करी, मैं काफ़ी जैसे बोला, मैंने साधुओं से मिला, अपने गुरु से मैंने बात करी कि एक्सपीरियंस क्या है, ये कैसे हो, इज़ इट पॉसिबल और नॉट। तो वो आपको अपनी लाइफ में कैसे उतारना है वो उन्होंने मुझे बताया, और उन्होंने मुझे गाइडेंस दी कि यू शुड डेफिनेटली स्प्रेड टू अदर वर्ल्ड, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द न्यू और ओनली वर्क यू आर डूइंग। मतलब आप इससे पहले किसी ने करा नहीं है, तो कोशिश करो अपने स्क्रिप्चर्स को तुम सिंप्लीफाई करो, और सिर्फ शिव पुराण नहीं, और भी जितने पुराण हैं, जितना मैक्स कर सकते हैं को सिंप्लीफाई करें, जिससे हमारे धर्म को लोग ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें, और तभी उससे अट्रैक्ट हो पाएंगे, उससे पढ़ पाएंगे, जान पाएंगे। वंडरफुल। और आज की जनरेशन थोड़ा इच्छुक भी है जानने समझने के लिए, तो आज की जनरेशन ने पढ़ना फिर से चालू किया है इसके बारे में और अपने रूट से कनेक्ट करने की कोशिश की है। सो ये उस पर्टिकुलर पाथ में
it will help them to be connected Yes. to the main deity, Lord Shiva. Yes. So wonderful work. And अगर किसी को ये book purchase करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं? It is available on Amazon, Flipkart और Notion Press के stores पे भी available है. मैं आपको लिंक दे दूंगा. They have discounts available at Notion Press stores, so you can purchase it. So, viewers, if anyone wants to grab this book, go to the description box. वहाँ पे link दिया हुआ है इस book को purchase करने का. So, please click on the link so it will take you to the book store directly and वहाँ से आप इस book को purchase कर सकते हैं. And अगर किसी को आपसे connect करना हो directly, क्योंकि ऑथर से कनेक्ट करना डायरेक्टली अबाउट दिस टॉपिक, और अगर कुछ और जानना समझना है सो वो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? या सो मेरा इंस्टा आईडी है आप शिव के सेवक नाम से, जिसमें मैं बुक्स के स्टोरीज और स्निपेट्स भी शेयर करता हूँ. एंड यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टा. यू कैन कनेक्ट मी, आई विल शेयर इट विद यू. वंडरफुल, वंडरफुल. एंड इस बुक को आपने लिखा, पब्लिश किया, ये एक स्टेज था. नाउ सेकंड स्टेज है इस बुक के लिए रिकग्निशन मिलना. आपको गोल्डन विंग्स बुक अवार्ड 2026 मिला है इस बुक के लिए. सो हाउ डज दैट फील? It's really good, but I totally feel that this is given by Lord Shiva himself. So इसमें मेरा I've just done a very small work towards his service, और ये जो अवार्ड मिला है उन्हीं की ग्रेस से मिला है, ये मैं मानता हूँ. और भी मुझे 2-3 अवार्ड्स मिले हैं फॉर दिस पर्टिकुलर बुक ओनली, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट दिस इज द ग्रेस ऑफ लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ. या वंडरफुल. एंड अभी कोई और बुक इन कमिंग सून और पाइपलाइन में है? या कपल ऑफ बुक्स आर देयर. जैसे एक हरिहरा अनलॉक्ड मैं लिख रहा हूँ, जिसमें हरि भगवान और भगवान शिव के 2 डिफरेंट फॉलोअर्स का वो है, राइट. सो शिव के फॉलोअर्स विल नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद विष्णु भगवान के फॉलोअर्स. सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट. आई ट्राई टू रिजॉल्व दैट आल्सो इन दिस बुक. एंड कुछ मैसेज देना चाहेंगे यंग जनरेशन को जो आपको सुन रहे हैं आपकी तरफ से? सो मैं ये बोलना चाहूँगा स्पेसिफिकली एस्पायरिंग ऑथर्स को जो अपना थॉट्स लिखना चाहते हैं. तो मेरा एक ही ये मैसेज होगा कि आपके जो भी आपने सोच के रखा है कि व्हाट यू वांट टू प्रेजेंट एज अ बुक, उसको आप ज़रूर लिखिए विदाउट थिंकिंग लाइक वेयर यू शुड बी पब्लिशिंग इट फर्स्ट, बिकॉज फर्स्ट टाइम डेफिनेटली चैलेंज होता है कि हम कहाँ पब्लिश करें, राइट. सो यू कैन चूज़ एनी सेल्फ पब्लिशिंग press, right? And once if your quality is good of your work, then definitely it will market and you will get the opportunity to publish it in a very good publishing houses as well. But the main thing is that you have to start. That is the main thing that I have done, because this is my first book only, and by God grace I got this award. So वंडरफुल, that's the message. सो थोड़ा बुक से डाइवर्ट करके मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगी. आपने रुद्राक्ष पहना है, राइट. सो इसके बारे में भी बहुत सारे मिथ्स हैं, एंड पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, किसको पहनना चाहिए. सो आपकी तरफ से थोड़ा इस पे लाइट थ्रो कर सकते हैं? सो इसका बेसिकली जो शिव पुराण में मेंशन है कि हमारे टोटल 14 मुखी ये होते हैं, रुद्राक्ष होते हैं, राइट. और हर मुख के रुद्राक्ष का एक डिफरेंट मीनिंग है, और वाई वी शुड वियर दैट पर्टिकुलर मुखी ये मेंशन होता है, राइट. बट 5 मुखी रुद्राक्ष ऐसा बोला गया है कि इट इज़ जनरल, और कोई भी फॉर नॉर्मल देयर वेलबींग पहन सकता है, फॉर हेल्थ इश्यूज, फॉर डिवोशन, फॉर स्पिरिचुअल मेडिटेशन एंड ऑल, राइट. आप पहन सकते हो. मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा. बहुत से लोग मीन्स इन यूट्यूब आई हैव स्पेसिफिकली फॉलोड एंड इन ब्लॉग्स ऑल्सो, कि बहुत लोग आपको भटकाएंगे कि बट इट इज़ अ वेरी टफ टू वेयर इट. बहुत चीज़ आपको फॉलो करनी पड़ती है एंड ऑल. यू शुड नॉट वेयर इट एंड गो टू बाथरूम एंड डू सर्टेन थिंग्स, राइट. दैट इज़ ट्रू. बट ये है आपकी प्योरिटी के ऊपर, आप कितना डिवोशन रखते हो इसको पहनने के समय में. एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि आप दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग टू वेयर, इट्स नॉट अ नॉर्मल ज्वेलरी टू वेयर. ये आपको हमेशा याद रखना है, बिकॉज इट इज़ द वे यू आर शोइंग योर डिवोशन टुवर्ड्स लॉर्ड शिवा, राइट. तो
you should wear it with proper purity, and there is nothing that you should not go to bathroom, you should not do this and that. ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है शिव पुराण में, राइट? यू शुड वेयर इट, बट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हर मुखी का एक मंत्र है, उस मंत्र का जाप जरूर रोज करके इसको पहनना चाहिए शिवलिंग में छुआ के, देन इट विल बी एनर्जाइज एंड इट विल गिव द होल बेनिफिट टू यू। सो क्या वुमेन भी पहन सकती हैं? कोई ऐसे दिक्कत नहीं है? देखिए, दिक्कत मैं ये नहीं बोलूँगा नहीं है, बिकॉज रुद्राक्ष पहनना बेसिकली भगवान शिव ही चुनते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी पहन सकता है, ये मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरी वाइफ ने भी ट्राई किया था बट शी हैज़ टू वेयर आउट, राइट? सो अगर आपकी बॉडी पे एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो यू विल फील नो इश्यूज, यू विल वेयर इट, नो प्रॉब्लम। बट अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपको सिग्नल्स मिल जाएंगे एंड यू विल डेफिनेटली वेयर आउट। You will feel you yourself will feel या uncomfortable. अनकंफर्टेबल। Maybe. Okay. और इसका अगर जैसे पहनते पहनते थोड़ा सा कुछ गंदा हो जाता है या मैल आ जाती है, तो उसको साफ तो करने का कोई तरीका? उसका क्या तरीका है कि आप कोई भी नॉर्मल ऑयल जो होता है, ऑलिव ऑयल से यू कैन डू इट इन अ मंथली क्लीन अप, आप कर सकते हो। देन उसके बाद आप गंगा जल से उसको वॉश करके भगवान शिवलिंग पे छुआ के देन अगेन यू कैन वियर इट, तो उससे उसका लाइफ बढ़ जाता है। वंडरफुल। एंड यस, बुक जब हम पढ़ेंगे तो हमें और ज़्यादा इंसाइट्स मिलेंगे चीज़ों के बारे में, एंड इट वुड बी वंडरफुल बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे ही करते हैं क्योंकि ट्रेंड है, बहुत सारे लोग पहन रहे हैं रुद्राक्ष, तो चलो हम भी पहन लेते हैं। सो ट्रेंड वाइज भी चीज़ें फॉलो करते हैं, बट चीज़ों को सही तरीके से करेंगे तो जिस रीज़न और वजह के लिए हम कर रहे हैं उसका फ़ायदा और लाभ होगा, यही मेन पर्पस है। वंडरफुल। मैं बस यही बोलूँगा कि देखिए, आज का टाइम हमारा जो जितना बिजी शेड्यूल है, राइट, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारी लाइफ में, एंड इफ़ यू वांट टू मेक योर लाइफ सिंपल, इजी टू लिव, राइट, तो यू शुड डेफिनेटली रीड शिव पुराण। ये मेरा मैसेज है, बिकॉज सबको पढ़ना चाहिए। इफ़ यू आर हिंदू, इफ़ यू आर नॉट हिंदू, इफ़ यू आर attracted towards Lord Shiva, then also you should definitely read Shiv Puran and get the benefits out of it. So क्योंकि आजकल हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उसमें इतना सारा chaos है, इतना सारा स्ट्रेस है, भागा दौड़ी है, सो अपने मन को एक जगह हम स्थिर कर नहीं पा रहे हैं। हम 30 सेकेंड्स के रील एरा में रह रहे हैं, जो एक 30 सेकेंड्स की रील भी हमसे पूरी नहीं हो पाती है कभी कभी। सो इस केस में मन को शांत करने के लिए और स्थिर करने के लिए मे बी this has come up. Yeah. And thank you so much for writing this book and taking that step कि लोगों को सही दिशा पे लाया जा सके और उनका मन शांत और स्थिर किया जा सके और उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाया जा सके अपने रूट से कनेक्शन के बेसिस पे। सो चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट है, बट आप जैसे ऑथर उभर रहे हैं, जो हम जैसे लोगों को जिनको डर लगता है डिफ़िकल्ट चीज़ों पे एकदम से जंप करने के लिए, एक ये ब्रिज है इन बिटवीन अस एंड दैट पाथ। तो वो आपके थ्रू लाइट और गाइडेंस मिलना शुरू हो गई हमें। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग द वंडरफुल जॉब एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन ऑन विनिंग गोल्डन विंग्स बुक अवार्ड 2026 for your book. So keep doing the good work, keep inspiring people, and society and the world needs people like you. Thank you so much. Thank you.